Good afternoon, everyone. Let's start our discussion for today's class. Today, I am planning to cover confession and statements recorded by the magistrate under Section 164. Thereafter, we will discuss that after the completion of the investigation, after doing all these things, for example, proceeding to the spot crime scene, then acquainting with the facts and circumstances of the case, search, seizure, interrogation, recording of statements by the police, recording of confession or statement by the magistrate. After doing all these things, the police will, or the investigating officer to be precise, has to arrive at a conclusion, and he can arrive at two possible conclusions, which I'll ask you, because it's very simple that after the completion of the investigation, you have to arrive at a conclusion. Either you will say that there are sufficient evidences against the accused person, which is a situation wherein police officer is of this opinion that he may be put on trial, or he may arrive at a altogether different conclusion, opposite conclusion, that there are no sufficient evidences. In that situation, he will not forward the accused person to the magistrate, or he will not forward the police report under 173. Rather, he will forward a report under 169, which is popularly known as final report. However, the expression is not used under same expression is not used under CRPC. So we will try to complete both those sections as well, 169 and 173. So by and large, our discussion on investigation will be complete, except arrest. Treat law relating to arrest as a separate topic. It is a part of the investigation, but because the topic relates to personal liberty of human beings, so therefore it has been given more attention by the courts, and it should be given more attention by us also while discussing the provisions of CRPC. So we will keep arrest to be discussed as a separate topic. Maybe I'll start with that in the next week. Tomorrow I'll discuss one or two more things, like what will happen if investigation is not completed within 24 hours, about which I have my own personal opinions, that there is no need to have such a provision. Rather, you can have a provision of providing strict timelines to complete investigation. आप बिना बात ऐसा पता नहीं किसने वो रखा हुआ है, प्रोविजन क्यों रखा हुआ है. वैसे तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं. अभी एक कमेटी भी बैठी हुई है टू रिफॉर्म क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. और तो एक्चुअली में मेरे हिसाब से उस प्रोविजन में ये होना चाहिए कि भाई अगर अपराध हीनियस है, 10 या 10 साल की सजा से ज्यादा, उसकी इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में पूरी हो मैक्सिमम. अगर नहीं कर पाओगे तो केस शैल बी क्लोज्ड. और अगर अपराध 7 साल या उससे ज्यादा का है, उसकी इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में पूरी कर लो. नहीं कर पाओगे तो केस शैल बी क्लोज्ड. और अगर बाकी 7 साल से कम का अपराध है तो 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट जमा करा दो या फाइनल रिपोर्ट, और नहीं तो केस विल बी क्लोज्ड, एक्यूज्ड विल बी रिलीज्ड. ना तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि अंडर ट्रायल से जेल भरे पड़े हैं, ना आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि पुलिस टाइम से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, उधर इनकॉम्पिटेंसी है, इधर इनकॉम्पिटेंसी है. ना कोई ये चिल्लाएगा कि मैं अब 5-10 साल से एक ही केस में फंसा हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, फाइनल रिपोर्ट लगाएगी, पता नहीं क्या करेगी. तो 167 वी विल डिस्कस टुमारो. सिंपल से सॉल्यूशन है बिल्कुल. आपको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर इसके आसपास का होना चाहिए कुछ. एक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन का एक पीरियड प्रोवाइड कर दो, और ऐसा मत रखो, उसको रिजिड मत बनाओ दैट यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 90 days. आप उसमें ये भी लिख दो नीचे दैट आफ्टर 90 days यू हैव टू टेक द स्पेशल परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, दैट व्हाई आई वाज अनएबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, मे बी ओइंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस. सिर्फ यही एक कारण हो सकता है मेरे हिसाब से कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका नेचर ऐसा है कि आप उसको एक समय सीमा में पूरी नहीं कर पाओगे. ये समय कम समय है, तो थोड़ा सा ज्यादा समय मांग लो बाई पुटिंग अप एन एप्लीकेशन. उसमें ये लिख दो आप प्रोविजन में, जहां टाइम बाउंड बना रहे हो इन्वेस्टिगेशन को, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर
24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हुई तो आपको मैजिस्ट्रेट को एक्यूज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर वो उसको पुलिस कस्टडी देगा, जुडिशियल कस्टडी, वो प्रोविजन रख दो, बट उसको 24 घंटे वाला सिस्टम को ये मत करो, उसको सिंपल रख दो कि 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, इसलिए आपको उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको पुलिस रिमांड पे भेजना है या उसको जेल भेजना है, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, प्रिजन में भेजना है, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना है उसको। और जो उसका सेकंड पार्ट है जिसमें 60-90 डेज समथिंग कुछ लिखा हुआ है, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर बेल, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन काइंड ऑफ ए प्रोविजन है, उसका कोई मतलब नहीं है। इन 21st सेंचुरी यू शुड प्रोवाइड time bound investigation in different offenses. So tomorrow we will devote a lot of time to all those things which I am telling you now. Maybe I am also rehearsing myself what I am supposed to teach tomorrow. So let's start our discussion for today's class. Yesterday we saw that police has been given the power to interrogate or examine any person. Any person means any person who has some information in the opinion of the police officer relating to the case law that he or she is investigating, relating to a cognizable offense that he or she is investigating. Now, for that purpose, he has been given the power to issue a written order to any person asking him to appear before the IO in the police station. There are certain exceptions to it. If the person whom you want to interrogate is below the age of 15 years, above the age of 65 years, or a woman, then you cannot call that person to the police station. You have to go to a place which is convenient to that person and then interrogate that person. Secondly, when you will call that person by issuing an order under 160, under 161, you are empowered to orally examine that person. And in case, if the police officer, you here means police officer, so we are talking in third person. So if you think that the substance of that oral examination or that oral examination seems to be very relevant and which may be used by you in your charge sheet and during the trial from the prosecution side, then the police officer has also been empowered under subsection 3 of 161 to record that testimony, to record that oral examination in writing. However, this statement which is recorded now in writing, oral statement now reduced in writing, shall not be signed by the maker of the statement. Under 162, we discussed the evidentiary value of this statement. There we discussed that it is not admissible as evidence except in one situation wherein the person who has made the statement before the police officer and the same has been recorded by the police officer, investigating officer, under the provisions of 161. If that person appears as a prosecution witness at the time of the trial, then the defense counsel would get a chance to contradict the statement made by that person during the trial with the help of the statement recorded given by him to the police officer and recorded under section 161. So for the purpose of contradicting the statement made by a prosecution witness before the police officer and recorded under 161, you can use the statements recorded under 161. उसके अलावा उसका कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है. But in addition to that, we should also remember that in case the person whose statement has been recorded happens to be a victim of the crime and the person dies after making the statement, then in that case that statement will become a dying declaration and would be relevant under section 32 of the Evidence Act. Another exception to this general rule that evidence, the statement recorded under 161 are not admissible is that if an accused person has given a statement to the police during investigation and the same is recorded under 161, then if you have found
anything or any weapon which has been used or which is linked directly or indirectly to the commission of a cognizable offense under investigation, then that statement is relevant for the purpose of proving the discovery of such thing or weapon which has been used in the commission of the crime or directly or indirectly related in the commission of cognizable offense. So this is the story that we discussed yesterday. The conclusion from this story is that the statements made before the police officer, even when they are reduced into writing, are not admissible as evidence, except in one situation where they are being used for the purpose of contradicting the maker of the statement if he happens to appear as a prosecution witness. So CRPC surprisingly says कि यार ऐसा है, पुलिस वाले हो आप अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते आपके ऊपर, रत्ती भर विश्वास नहीं है आपके ऊपर, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है इसको तो हम एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं मानेंगे. ठीक है जी. तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि अगर पुलिस वाले को आफ्टर इंटरोगेशन ऐसा लगता है कि जो ओरल एग्जामिनेशन के दौरान कोई व्यक्ति उसको बयान दे रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, and he has been given the power to reduce it into writing. But the same statement which has now been reduced into writing, because it was recorded by the police officer during investigation, it is not admissible. अब इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है, इसका क्या करें भाई. ठीक है. अब एक और सिचुएशन लेते हैं. सपोज पुलिस after the registration of FIR for commission of a cognizable offense, police apprehends the accused person, or the accused person himself comes to the police station, and out of the guilt or some other reason, the accused person who has been arrested or who appears himself or herself before the police station, उसने confess कर लिया that I have committed this crime, XYZ crime, I have committed this. So therefore this statement is not merely a statement, it's a confession of commission of a crime. So if this statement is to be used at the time of a trial as a evidence of commission of crime by the accused person, then 161 cannot assist us. 161 cannot assist us because according to section 25 would come into picture relating to confession. पहली सिचुएशन में 161 पे ही कह देते हैं हम कि भैया स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है पुलिस के सामने, इफ द स्टेटमेंट इज नॉट ऑल स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशंस, अगर वो रिकॉर्ड किए पुलिस वाले ने अंडर 161, दे आर नॉट एडमिसिबल. बट इफ द स्टेटमेंट इज इन द नेचर ऑफ कन्फेशन, तो फिर 25 भी पिक्चर में आ जाता है ऑफ एविडेंस एक्ट. एंड व्हाट डज 25 प्रोवाइड्स फॉर? 25 provides for evidence act. 25 of evidence act provides for, हाँ जी बताओ. So 25 confession to police officer. हाँ ठीक है जी. वो कहता है कि भाई जो एक जनरल रूल लेट डाउन करता है, वो जनरल रूल लेट डाउन करता है. ठीक है. There is a very interesting story. Britishers used to say that the only competent witness in India is a child. British officer, it is well documented. They used to write that the only competent witness in India is a child. What does this mean? बताओ भाई, ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो इतना ड्राई नहीं है जितना कन्फेशन वाला सवाल था. Britishers used to say that only competent witness in India is a child. His testimony is not doubted. मतलब आशय क्या है कहने का कि भाई वो ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, बच्चा तो कॉम्पिटेंट विटनेस होता ही नहीं है. So maximum people will retract from what they said later. और थोड़ा इसको ग्रॉस बना दो, एक्सट्रीम में ले जाओ, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते. हाँ ऐसे बोलो. तो अंग्रेज कहते थे कि भारत में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों के अलावा सब झूठ बोलते हैं. तो वैसे तो एविडेंस लॉ का ये नियम है दैट चाइल्ड इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस, बट दे यूज्ड टू पुट दिस नियम on its head.
वो कहते थे इन इंडिया चाइल्ड इज द ओनली कॉम्पिटेंट विटनेस। मुझे लगता है कि जब पुलिसिंग वाला सिस्टम उन्होंने शुरू किया आफ्टर द कॉर्नवालिस रिफॉर्म एंड ऑल आफ्टर 1850s और मेनली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उन्होंने जो आपका लोअर रंग पुलिस फॉर्म किया है, दैट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ लोअर रंग पुलिस ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, मेनली कंसिस्ट ऑफ दरोगा से लेके और उसके आसपास उसके नीचे के लोग, मेनली कंसिस्ट ऑफ इंडियंस। तो ये तब की करामातें हैं सारी, ठीक है। एविडेंस एक्ट कब का लिखा हुआ है? 1872 का, ठीक है जी। हम इसको ढो रहे हैं अब तक बिना बात के। यू कैन नॉट ट्रस्ट द पुलिस ऑफिसर। ये कौन कह रहा है? ये मैकोले साहब कह रहे हैं, मतलब ये कोई ब्रिटिश व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो पुलिसिंग होगी इंडिया में वो की जाएगी इंडियन लोगों के द्वारा मेनली। रूल्स तो हम बनाएंगे बट छोटे थाने के लेवल पे सब इंडियन लोग होंगे, इन पे हम ट्रस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो इनके सामने जो भी एक्यूज पर्सन बोलेगा वो नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, वो नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, ये नहीं मानेंगे हम। पता नहीं डांट के बुलवा रहा हो, पता नहीं थ्रेट दे के बुलवा रहा हो, पता नहीं इंड्यूसमेंट दे के कर रहा हो। और नाउ दिस प्रिंसिपल हैज बिकम सो एम्बेडेड इन आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस कि सबको ये रट गया है बिल्कुल। इससे ये नहीं लगता है कि यू आर डीह्यूमनाइजिंग योर फेलो सिटीजन। अरे भाई, फिर उसको आपने इतने जिम्मेदार क्यों बना रखा है कि वो कोई काम भी करेगा आपके लिए, जब आपको यही विश्वास नहीं है कि जो स्टेटमेंट उसके सामने दिया गया है वो सच है, झूठ है, डरा के लिया गया है, पुचकार के लिया गया है, धमका के लिया गया है। अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है तो रखी क्यों है मशीनरी? अब पुलिस वाले भी खुश हैं इस बात से, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल पुलिस वाला एज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट के भैया ऐसे डीह्यूमनाइज क्यों कर रहे हो हमें? आप ये क्यों बोल रहे हो नॉट एडमिसिबल? आप ये बोल दो इट विल नॉट बी ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। आपको प्रूव करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट में क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है उस पुलिस वाले का जिसने रिकॉर्ड किया है। आप कोई और तरीका बताओ ना। आप सीधा सीधा ये क्यों बोल दे रहे हो कि आप रिकॉर्ड करोगे तो एडमिसिबल नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा तो एडमिसिबल हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड, वही वाली बात दैट इफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट तो कॉम्पनसेशन का अमाउंट 1 करोड़ होगा। इफ रिक्शा वाला इज किल्ड इन एन एक्सीडेंट तो लाख रुपए लेके बता दो कोई, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट CRPC का provisions or like such provisions of CRPC, like 25 of Evidence Act or 161 read with 25 of Evidence Act, wherein the general rule, this is the established rule of jurisprudence, criminal law jurisprudence. ऐसा नहीं है इसमें कोई दाएं बाएं हो, कोई exception हो, कुछ नहीं है ऐसा इसमें, ठीक है। So section 25 provides that a confession made to the police officer, and when you read 25, imagine that it is something which is written in 1872 by a foreign gentleman, or by a group of foreign gentlemen. It is not written by you and me. So it's a law that we are carrying on our shoulders. God knows what's the reason. God knows what the reason. It simply says confession made to the police officer is not admissible as evidence if at the stage of investigation a confession is made by the accused to the investigating officer or any other police officer that cannot be used against the accused at the stage of the trial. क्यों भाई? आपको लगता होगा भारत में बच्चों के अलावा सब झूठ बोलते हैं, बट भारत के लोगों को तो ऐसा नहीं लगता ना। सारे पुलिस वालों को ऐसा लगता है क्या कि वो डरा धमका के कन्फेशन निकालेंगे सबसे, ठीक है। अब होगा कोई, मतलब देयर कुड बी ऑल काइंड्स ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट, but you cannot paint the entire basket to be a waste basket or basket of the waste sick apples or the rotten apples. ऐसा थोड़ी कह सकते हो आप, बट चल रहा है, ठीक है। अब हम भी पढ़ रहे हैं इसको बट आप जब इसको पढ़ो तो हंस के पढ़ना, मतलब मजाक में पढ़ना कि यार ऐसा है जो लिखा हुआ है 25 में होगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कॉमन सेंस नहीं बनाता है वो, ठीक है, कि अच्छा पुलिस की कस्टडी भी तो व्यक्ति डर जाता है, पुलिस वाला शायद उसको डांटेगा, धमकाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे जितने सेफ गार्ड आपने मैजिस्ट्रेट को दिए उतने पुलिस वाले पे भी लगा दो सेफ गार्ड। उसको बोलो वीडियोग्राफ करेगा, उसको बोलो पढ़ के बताएगा उसको कि अगर आपने कन्फेशन दिया इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू,
उसके बाद उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मत बनाओ, उसको कोई कोरबरेटिंग नेचर का एविडेंस बना दो, ये बोल दो कि ट्रायल में उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ट्रायल में एक्यूज पर्सन ने सेम स्टेटमेंट नहीं दिया, अगर वो पलट गया तो पुराना वाला स्टेटमेंट हम नहीं अलाउ करेंगे। बट साफ साफ ये क्यों कह रहे हो यार कि इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज नॉट एडमिसिबल। तो ये सीधा सीधा ये कह रहे हो कि भाई दरोगा और उसके नीचे के व्यक्ति पुलिस में इंडियन होंगे और हमें ही नहीं पता इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमें नहीं पता। एविडेंस एक्ट लिखने वाला कह रहा है हमें एक इंडियन की क्रेडिबिलिटी पे हम नहीं विश्वास करेंगे जो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तब तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। कन्फेशन छोड़ दो यार, आप तो स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं कर रहे हो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो। चलो कन्फेशन में तो मान लेते हैं द स्टेक्स आर हाई, द राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज एट स्टेक। बट 161 में ऐसा क्या स्टेक है? 161 में देयर इज नो सच स्टेक। तो 164 जो है वो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट इफ पुलिस ऑफिसर is recording any statement or confession during investigation under 161, such statements are not admissible as evidence. For confession, you can read 161 with 25. That a confession made by the accused person to the police officer is not admissible as evidence. तो ये हो गई लीगल समस्या। अब इसका सॉल्यूशन दिया है 164 में। And the solution is that 164 empowers a magistrate or metropolitan magistrate, a judicial magistrate or a metropolitan magistrate, whether that person magistrate has a jurisdiction or not in that particular case, to record any confession or statement made to him in the course of investigation. तो solution इसका ये है कि अगर कोई accused person is making a confession that he or she has committed a crime, cognizable offense, before the police officer, then it is the kind of a duty of the police officer to take that person before the magistrate. And under 164, magistrate will record his confession. Magistrate will record his confession. और same चीज police officer IO could do if he thinks that a statement made to him by any person is so important that it can make or break a case. Then if he records that statement under 161 subsection 3, it will not be admissible as evidence. So therefore he can approach the nearest magistrate and let that statement be recorded by the magistrate under subsection 5 of 164. Subsection 5. You have to read subsection 5 with subsection 1 when you will talk about statements. So 164 provides a remedy to the problem which has arisen because of non-admissibility of the statements or confession given to the police officer. And the remedy is that if a confession is made to the police officer, then police officer should take that accused person before magistrate and let the magistrate record his confession under 164. Then it will be admissible as an evidence. Then it shall be admissible as evidence during the trial. If a statement seems to be so important to the IO कि भाई उससे किसी ट्रायल का जो आउटकम है वो बदल सकता है उसके हिसाब से, it's a very good statement. And if the same person records that statement before a magistrate, it would become admissible. तो वो उस सिचुएशन में IO should take that person before the magistrate and let the magistrate record his statement. The moment magistrate is recording his statement, the evidentiary value of that statement would be higher. It will become an admissible evidence, and it will support the case of the prosecution. Now, any confession which is recorded under 164 may also be recorded by audio, video, electronic means. So ऐसा भी जरूरी नहीं है that physically आपको लेके जाना है accused person को या किसी witness को वहाँ पे. So what you can do, you can record that confession in audio, video, visuals means or by using some technology. अब जो ban है ना police officer के ऊपर that he cannot record the confession because it won't be admissible as evidence, वो उतना एक्सटेंडेड है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रियल पावर भी दे दी गई
in certain circumstances, kind of a hypothetical, तब भी वो confession record नहीं कर सकता है, तब भी वो confession record नहीं कर सकता है. Now, subsection 2, 3 and 4 of 164 provides the procedure that shall be followed by the magistrate in recording confession under 164. So subsection 2 of 164 provides that before recording the confession, the magistrate is required to inform the accused that you are not bound to make this confession. If you make this confession, then it can be used against you. If even after giving this information, the accused person is willing to make confession, then only magistrate shall record that confession. So it's a procedural safeguard inserted under 164, which the magistrate must satisfy before recording the confession. अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा ही सेफगार्ड पुलिस वाले को के लिए लगा दो अगर आपको लगता है कि वो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर करेगा, ठीक है, और उस सेक्शन 25 को अलविदा बोलो, या फिर उसको थोड़ा सा तो जस्टिफाई करो, थोड़ा सा तो रेस्पेक्टफुल बनाओ किसी के लिए, ठीक है. सो देन सबसेक्शन 3 of 164 provides that if at any time before recording of confession, अगर accused person को लगता है that he does not want to make that confession, then he shall not be authorized to be detained in police custody. तो आप कन्फेशन के लिए लेके चले गए कि भाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले अगर एक्यूज को कभी भी लगेगा दैट ही डज नॉट वांट टू मेक दैट कन्फेशन, तो उसके बाद एक तो आप दो काम करोगे, एक तो आप कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करोगे उसका, बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू मेक दैट कन्फेशन. कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी इन नेचर and it must be recorded only after you have explained the consequences of recording a confession, that it can be used against you once you have made it to the before the magistrate. दूसरा, आप उस व्यक्ति को वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजोगे, ठीक है. सो द आइडिया इज कि वो जो पुलिस वाले हैं उसको डरा धमका के लाए मैजिस्ट्रेट के सामने तो कह रहे हैं कि कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहता है, बट दैट पर्सन इज नाउ सेइंग कि भैया नो, आई डोंट वांट my confession to be, I don't have anything to say about the commission of crime. I am not willing to give you any statement relating to commission of crime by me. So us case mein you will not send that person, keep that person or resend that person to the police custody. You will send that person in the judicial custody. आप उसको जेल भेज दोगे व्यक्ति को. Now how will you record the confession? That is provided under 164 subsection 4. That is simple, you yourself can read it. Confession will be recorded as you record statements during the trial. तो ट्रायल के दौरान क्या होता है, सेक्शन 281 में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है उसको मजिस्ट्रेट उसी के शब्दों में लिखता है, शब्दों में लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाता है, मैंने ये लिखा है, फिर एक्यूज कहता है ठीक है जो मैंने बोला है आपने वही लिखा है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट. उसके बाद एक्यूज साइंस दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मैजिस्ट्रेट भी साइन करता है, एंड देन दैट स्टेटमेंट वुड बिकम पार्ट ऑफ द record of the trial. उसी तरीके से when the confession shall be recorded by the magistrate, then magistrate is required to follow the entire procedure that is followed at the time of the trial for recording of the statements, and at the foot of the confession, जहाँ पे confession खत्म हो जाएगा आपका, मैजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा that I have abide by the requirements for recording confession, which is that I have explained to the accused person that you are not, number one, you are not bound to make the confession. Number two, if you make this confession, then it may be used against you. And number three, I must satisfy myself that this confession has been made voluntarily, and it was taken in my presence. I read over the state confession given by the accused person to the accused person, and it was admitted to be correct by him, and it contains a full and true account of the statement made by the accused person. So therefore, in conclusion, what you can say that the remedy to the legal bar
or relating to known admissibility of confession made to the police officer under section 25 is that the confession must be recorded by the magistrate under 164. Then only it can become an admissible evidence. But before magistrate records that confession, he is duty bound to inform the accused person that you are not bound to make such a confession. If you make it, it can be used against you, and he must also satisfy that confession has been made to him voluntarily, and he has to follow all those requirements to record that confession, which he follows to record statements or confession given at the time of trial as per the provision of section 281 of CRPC. So जो नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये तीनों 281 के पार्ट है actually, that you will record the confession as far as possible in the language of the accused or in the language of the court. Okay? But you have to show the contents of the confession to the accused person, explain it to him. तो ये जो तीन पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, इसके नीचे भी एक और पॉइंट लिखा हुआ है. These are the parts. These points are the parts of taken. These points are taken from section 281. Now coming to अब confession के बारे में बात होगी. उसी तरीके से statement भी record कर सकता है magistrate, and which is a very important point to note for us as law students, that because any statement recorded by a police officer under 161 is not admissible as an evidence. So therefore 164(5) provides a remedy to it, that any statement other than a confession made under subsection 1 of 164 to the magistrate can be recorded as an in the same manner as you record evidences at the time of trial. तो इसका सिंपल सा समझने का मतलब ये है कि भाई पुलिस वाले को ये पता है कि 161 में जो बयान वो दर्ज करेगा, दे आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन, दैट इज 145. ठीक है, उसको पता है कि उसकी कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं है. सेम पर्सन हैज टू अपीयर एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड मेक द सेम स्टेटमेंट अगर उसको अपने प्रोसिक्यूशन साइड के केस को स्ट्रेंथन करना है. और पुलिस वाले को ये भी पता है कि अगर मैं इसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने लेके चला जाता हूं एंड 164 में इसका बयान रिकॉर्ड करा देता हूं तो वो एडमिसिबल एज एविडेंस हो जाएगा. सो देयरफॉर व्हेनेवर इट अपीयर्स टू द, और ये है आइडियल लाइन. अब ऐसा होता है या नहीं होता है, कितनी बार होता है कितनी बार नहीं होता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं होता है जहां तक मुझे लगता है. ठीक है, सो व्हेनेवर इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर that the statement of some witness are relevant at the stage of the trial, कि भाई ये जो स्टेटमेंट ये दे रहा है व्यक्ति मेरे सामने 161 में, ये बयान बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर द प्रोसिक्यूशन टू सिक्योर अ कन्विक्शन. तो उस सिचुएशन में ही कैन प्रोड्यूस सच विटनेसेस और विटनेस बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु कैन रिकॉर्ड द statement of such witness or witnesses. तो जब भी आप 164 पढ़ो उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ो. एक पार्ट 164 का बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बाय द मैजिस्ट्रेट, और एक पार्ट बात करता है 164 का रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन. तो मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, लॉ चाहता क्या है करना. ये हमारा लॉ नहीं है एक्चुअली, इट इज सीआरपीसी इज आल्सो बाय एंड लार्ज कॉलोनियल लॉ. 1973 का सीआरपीसी रिप्लेस्ड 1898 का सीआरपीसी बाय कीपिंग इंटैक्ट 80-90% ऑफ द ब्रिटिश सीआरपीसी, ब्रिटिश एरा सीआरपीसी. आप कह रहे हो कि जो स्टेटमेंट पुलिस को दोगे वो एडमिसिबल एज एविडेंस नहीं है, बट पुलिस वाला उसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने ले जाके अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देगा वो एडमिसिबल एज एविडेंस है. या तो आप इसको मैंडेटरी बना दो कि भैया जितने स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करोगे वो आप मैजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड करा दो, जिससे कि कन्विक्शन रेट भी बढ़े और ट्रायल भी जल्दी पूरा हो जाए और हॉस्टाइल विटनेस की समस्या भी कम हो जाए थोड़ी सी. या फिर आप कोई उसको गाइडलाइन दे दो जैसा आपने गाइडलाइन दिया है. अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है वैसे लॉ, इसको पढ़ो आप. Now this is a
change introduced by our parliament in 164. This is 5 capital A. थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है तो भाई कुछ अपराध में भी एक ही तरीके का अपराध है अभी कि of serious offences, sexual offences committed against women. The judicial magistrate shall record the statement of the person, which means victim against whom a crime has been committed, which means victim, in the manner prescribed under subsection 5, as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. Commission of the offence is brought to the notice of the police. तो यहाँ पे if you can adopt a hybrid approach, कि आपने यहाँ पे क्या बोल दिया कि ऐसा है भाई, विक्टिम का जो बयान है वो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा as soon as offence is brought to the notice of the police officer, to the notice of the police. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हुई है, that the statement which is recorded by the magistrate under 164(5) capital A would be a statement in lieu of examination in chief. Examination इसके मायने ये हुए कि जो 164(5) कैपिटल ए में बयान दर्ज कर लिया मैजिस्ट्रेट ने, अब विक्टिम का दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होगा, विक्टिम का दोबारा से एट द टाइम ऑफ ट्रायल एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट वुड बी इन लिeu ऑफ दैट एग्जामिनेशन इन चीफ. हाँ, बिकॉज एक्यूज्ड की लिबर्टी इज एट स्टेक, तो विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर होगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल, उसको तो कोई मना भी नहीं कर रहा है. विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा एट द टाइम ऑफ द ट्रायल, बट उसको दोबारा से वो स्टोरी नरेट करने की जरूरत नहीं है जो उसने सफर किया है, जो उसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, जो उसने मैजिस्ट्रेट को एक बार नरेट कर दिया. Moreover, you can always cross-examine the magistrate who has recorded the confession. You can always cross-examine the magistrate who has recorded the confession or any statement. तो वो भी आपके पास राइट है एट द टाइम ऑफ द ट्रायल. तो फिर पुलिस वाले के रिकॉर्ड किए हुए स्टेटमेंट और कन्फेशन से क्या एलर्जी है? या तो वही ब्रिटिश एरा वाली एलर्जी है आपको. तो अब पुलिस वालों ने भी मान लिया है that they are not worthy of recording statements which can be treated as evidence. उनको भी लगता है कि अपने को क्या करना है, ठीक है. वो भी मतलब वो होता है कि आप किसी पे डाउट करो, वो उस डाउट को सर्टिफाई करता है, फिर कभी कभी उसको एक्स्ट्रा सर्टिफाई करता है, कभी कभी उसको एक्सट्रीमली जस्टिफाई कर देता है, सर्टिफाई करने के साथ साथ कि भैया हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं इस बात को सही भी मानता हूँ, वो जस्टिफिकेशन भी सप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है. सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इटसेल्फ, द वे वी लुक एट द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स. हमने अधिकार भी सारा पुलिस को दिया है ऑन पेपर्स. दैट इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा यही है, दैट इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय द पुलिस. और कोई नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, स्पेशल एजेंसी जिसके पास पुलिस पावर्स हो. तो पुलिस पावर्स में वन ऑफ द मेन पावर्स इज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम और टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम. एक तो हमने उनपे इतना विश्वास जताया है ऑन वन एंड, फिर हम कह रहे हैं अलग अलग जगह पे नो सर्च विदाउट वारंट एज ए जनरल लॉ. कन्फेशन आप रिकॉर्ड करोगे, नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस. आप स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करोगे ना, वो भी नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस. तो आपको मैजिस्ट्रेट की तरफ देखना पड़ेगा बार बार उस चीज के लिए, ठीक है. अब इसको आप एक डिबेट के रूप में देखो, और इसको आप एक ऐसी चीज के रूप में देखो कि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे किसी एजेंसी पे, तो शायद वो एजेंसी भी आपके विश्वास पे खरी नहीं उतरेगी, ठीक है. इट्स लाइक ए स्टोरी ऑफ ए फादर एंड सन, कि लड़का घर के अंदर घुसा नहीं और पिताजी शुरू हो गए, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया था, किस घड़ी पैदा हो गया था, मेरी किस्मत फूटी थी क्या, ठीक है. इनके लक्षण देखो, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है. दुनिया देखो कहाँ चांद पे पहुंच गई और ये यहीं टहल रहे हैं, धरती पे टहल रहे हैं. और ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर मेड इन ल्यू ऑफ अ सरकारी जॉब. इन इंडिया में तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर मेड इन ल्यू ऑफ अ सरकारी जॉब. ये जैसे कि पता नहीं क्या चांद पे चले जाएंगे, सरकारी जॉब मिल जाएगी तो ठीक है. सो द एरिया फ्रॉम वेयर आई कम, वहां पे तो ऐसा गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि इफ सपोज अ पर्सन डज नॉट वांट टू डू अ जॉब, तो
और वो आपके आसपास के लोग ही बोलते हैं कि भैया ये तो पागल हो गया, ये हैज गॉन माइंडलेस। जरूरी थोड़ी है कि जो पैदा हुआ है जमीन पे वो एक ही प्रकार की नौकरी करेगा जिसके ऊपर सरकार का स्टैंप होगा। जरूरी थोड़ी है जितने लोग दुनिया में अपना ब्रेड एंड बटर कर रहे हैं वो सब कोई स्पेसिफिक टाइप का ही काम करेंगे और फिर उसी हिसाब से समाज उनकी तरफ देखेगा। ठीक है, तो ये पुलिस के साथ हो गया है, ये पुलिस के साथ हो गया है कि आपने एक लेंस बना लिया पुलिस को देखने का, और वो लेंस सीआरपी वो अंग्रेजों ने बना के दे दिया आपको लेंस, और आप उसी के हिसाब से उसको देखे जा रहे हो, आप उसी के हिसाब से देखे जा रहे हो जो अंग्रेजों ने बना के दे दिया आपको लेंस। ठीक है, सो this is all about 164. If you want to ask something, then you can ask. So you mentioned that we should trust the police and give them more powers, but don't you think that Not powers, yeah, not powers. Giving power is not tantamount to trusting somebody. Right, sir. I am simply saying, start trusting your police and try to realign the CRPC के provisions with the same level of trust जो आप उनके ऊपर दिखाना चाह रहे हो। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो, वहां पे बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई पुलिस वाला 161 के बयान रिकॉर्ड कर रहा है, 164 के बयान रिकॉर्ड कर रहा है, आप आउटराइटली ये मत कहो नॉन एडमिसिबल, आप ये कहो तब एडमिसिबल मानेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे। सेफगार्ड्स भी तो कोई चीज होती है ना, जैसे मैंने कल बोला था, व्हाई डोंट यू आस्क पुलिस ऑफिसर्स टू वियर ए बॉडी कैम, आपकी सारी समस्या ही सुलझ जाएगी। उसको बोलो जितने टाइम ड्यूटी पे रहेगा उतने टाइम बॉडी कैम पहनेगा, वो जिसके साथ बात कर रहा है, जिसका इंटरोगेशन कर रहा है, आप इंटरोगेशन को वीडियोग्राफ क्यों नहीं कराते हो सारे को, और उसके बाद मेक दैट स्टेटमेंट टू बी एडमिसिबल, क्योंकि वीडियोग्राफी में फिर डिमनर भी चेक हो जाएगा। एंड यू कैन ऑलवेज क्रॉस एग्जामिन अ पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जैसे आप मैजिस्ट्रेट को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो। तो मेरा कहना यह है कि पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट दोनों है तो ह्यूमन बीइंग ही, तो जब एक के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है तो दूसरे के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता। और ये मैं कोई मतलब इसके बारे में कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं तो आई एम थ्रोइंग अ डाउट आउट इन द ओपन। मुझे ऐसा लगता है भाई, अंग्रेजों का मानना था भारत में तो बच्चे ही सच बोलते हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस भारत में बच्चे होते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। तो सेक्शन 25 आ गया ऑफ एविडेंस एक्ट। अब इसमें मुझे गलत नहीं लगता, इतनी तो एनोलॉजी में ड्रॉ कर ही सकता हूँ ना। वी वर अंडर ए कॉलोनियल रूल, 1872 का एक एक्ट बना, हम लोग अनसिविलाइज्ड माने जाते थे, तो जो पुलिस के लोग हैं जो हम ही लोगों में से जाएंगे उनको भी वो उसी नजरिए से देखेंगे, तो सेक्शन 25 आ गया। ठीक है जी, मैं जो बोलता हूं उसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं है भाई, ठीक है। यस सर। हाँ, वो इट्स जस्ट a way to make the discussion more interesting, क्योंकि जब तक मैं 4-5 इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगा आपको ये चीज उस तरीके से याद नहीं रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को चोट लग गई एंड दैट किड हैपेंस टू बी वेरी स्मार्ट किड। उसको चोट लग गई, his parents took him to the doctor, तो डॉक्टर ने पट्टी बांधनी शुरू करी उसको। तो बच्चा कहता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब इस हाथ पे पट्टी मत बांधो, जहां चोट लगी है दूसरे पे बांधो। डॉक्टर कहता है क्यों भाई, चोट तो इधर लगी है, ठीक तो तभी होगी जब मैं इधर बांधूंगा। कि डॉक्टर साहब आप मेरी समस्या नहीं समझ रहे हो, कल मैं स्कूल जाऊंगा, जिस हाथ पे पट्टी बंधी होगी मेरे क्लासमेट उसी हाथ को छेड़ेंगे और बार बार छेड़ेंगे तंग करने के लिए मुझे, क्योंकि वो मेरी कमजोरी है, वो मेरी चोट, मुझे दर्द होगा उससे, तो उनको मजा आएगा, मुझे दर्द होगा। तो आप ना पट्टी दूसरे हाथ पे बांधो, उनको लगेगा इसी हाथ पे चोट लगी हुई है और वो उसको छेड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुलिस वाले को लगता है आप उससे डरते हो, आपको वो डराता है। जैसे एक पति अपनी पत्नी को डराता है, जिसको ये पता चल जाए ये मेरे से डरती है, फिर वो उसको सुबह डराएगा, फिर वो शाम डराएगा। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को डरा लेता है, जैसे कोई दादा अपने बेटे को और पोते को भी डरा लेता है, ठीक है। सो जब किसी को आपकी कमजोरी पता चल जाती है वो उसी पे पिंच करता है बार बार, ठीक है। आजकल पुलिस वालों को पता है कि भाई हमसे लोग डरते हैं, तो लेट अस पिंच देम,
तो पता नहीं ये कैसे कब से शुरू हुआ कि पुलिस वाले को ये लगना कब शुरू हो गया कि लोग हमसे डरते हैं। शायद अंग्रेजों के टाइम पे लगना शुरू हो गया होगा, उन्होंने कहा होगा पुलिस वालों को ऐसे बिहेव करना, लोग डरने लगे आपसे, तो फिर उनको मजा आता है, और फिर वो पावर जो वर्ड बोल रहे हो ना आप, फिर वो आ जाता है, एंड देन यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड, एंड देन थिंग्स हैपेंस, some things happen like X beats Y, A beats B, C beats D, पुलिस वाला beats accused, पुलिस वाला kills somebody in custody, उस तरीके की स्टोरी आना शुरू हो जाती है। तो इट्स बेसिकली ह्यूमन नेचर कि हमें किसी की कमजोरी पता चल जाती है, हमें मजा आता है उसको छेड़ने में, जब जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है हमें और मजा आता है, एंड देन अल्टीमेटली यू एंड अप बिकम ए बुली, एंड विच वी थिंक पुलिस इज। पता नहीं अगर आप कोई सर्वे भी कराओ आम आदमियों का, तो उनसे पूछो कि पुलिस बुली होती है नहीं होती, तो सभी लोग कहेंगे ज्यादातर 99% की हाँ भाई होती है, भले ही उनका पुलिस से कभी वास्ता भी ना पड़ा हो। द इमेज is so strong that it defies all levels of rationality, ऊपर से आजकल तो ऑडियो वीडियो का जमाना है, तीसरे दिन कोई वीडियो देख लेते हो पुलिस वाला इज बीटिंग समवन तो वो पूरा जो आप सोच रहे हो ना, वो विचार आपके स्ट्रेंथन हो जाते हैं उस बारे में। ठीक है भाई, सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज इट्स टाइम इज ओवर। टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन on charge sheet and final report.